Hello students, I hope you all are doing safe and fine. So last week what we have done how we can create tables, in MS Word. हमने tables बनाने MS Word में सीखे थे. So I will repeat the process again, how we can make the table. Even some of you have sent me your work as well कि how you have created the table, but still some of you have sent, all of you have not. I can understand, maybe you all are not having the laptop at home or computer at home, system at home. Still it is fine, but please go through the process again so that it will be clear to you how to create it. So आज हम करेंगे, today we will do formatting in tables. आज हम tables को formatting कैसे देते हैं, that we will learn. So before that I'll repeat the steps again to how we can create the tables in MS Word, so that we can go through the process again. So be with me here on screen. So first of all, here you can see the computer screen of mine. First of all, I've gone to search. As you can see, this is my search button पे what I will type is Word. As you can see, I have typed Word over there, and here is my Word application. I'll click on it, and after clicking on it, here it is blank document. As you can see, blank document पे जब हम click करते हैं तो blank document is there. So the steps to create the table. In insert option on taskbar, as you can see some options: file, home, design, layout, reference, mailing, review, view, help. So यहाँ पे insert option में you can see table over there. Table में I have told you 3 options. As you know that ये जो है ये this one is you used to select the rows and columns. यहाँ insert option में when you will go there in insert option, तो number of rows and columns it will ask from you, and you can put the number of rows and columns, and after that you will be able to create the table. So this is how it help you to create the table. So after that, another option I told you is कि यहीं पे insert option में you are having third option, that is draw table. This will help you to draw table. So let me start with insert table. I'll put number of rows and columns, that is 5, and we can say 7. So number of rows and columns is 5 and 7. So here I am having 5 rows and 7 columns, as you can see on my screen. So this is, we have inserted, we have created the table last week, and you have inserted the data as well in the table. Now we will learn how we can do formatting. हम formatting कैसे करते हैं table की. Formatting means how we can make it attractive, और इसकी appearance जो है वो हम कैसे अच्छी कर सकते हैं. So सबसे पहले जो हम कर सकते हैं, ये हमारा टेबल है. इसके अंदर हम यहाँ डिज़ाइन व्यू में जब हैं, डिज़ाइन व्यू के अंदर वी आर हैविंग मल्टीपल ऑप्शंस इन ग्रिड टेबल. यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं ग्रिड टेबल में जो हम सिलेक्ट कर सकते हैं. तो ये ऑटोमेटिकली हमारे टेबल को जो है, इट विल गिव कलर टू आवर टेबल, बॉर्डर टू आवर टेबल according to the layout which you select. So this is kind of a ready-made thing which you can do. लेकिन अगर आप ये यूज़ ना करके, if you want to give your table, if you want to give color to your table by yourself, so what we can do is, आप जिस सेल को सिलेक्ट करोगे और शेडिंग में जाके जो कलर आप सिलेक्ट करोगे, आपके उसी सेल के अंदर दैट कलर विल बी फिल्ड. दैट इज़ अपॉन यू कि आप अगर सेल को सिलेक्ट करोगे, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने इस सेल के अंदर क्लिक किया और मैंने शेडिंग पे जाके कलर को सिलेक्ट किया, तो जो कलर मैं सिलेक्ट करूँगी मेरा उसी सेल के अंदर वो कलर हो जाएगा. बट अगर मैं
दिस इज़ वन ऑप्शन कि हम एक एक सेल के अंदर कैसे कलर फिल करेंगे। लेकिन अगर मैं पूरे टेबल के अंदर एक साथ कलर फिल करना चाहती हूँ तो आई सिलेक्ट माई टेबल एंड फ्रॉम देयर मैं उसको शेडिंग फिल कर दूँगी, तो वो सारा का सारा जो है मेरे टेबल के अंदर जो है शेड फिल हो जाएगा, एज यू कैन सी। लेकिन अगर मैं चाहती हूँ कि मेरे टेबल के अंदर एक एक रो के अंदर या एक एक कॉलम के अंदर कलर हो, तो वन रो आई विल सिलेक्ट एंड आई कैन डू शेडिंग ओवर देयर, वन रो I can select and I can do shading over there. So this is another way by which I can fill my fill my table with color. So this is how I can fill color in cell, different rows and columns. So these are three options we have done. First of all हमने यहाँ से टेबल को ही सिलेक्ट किया, यहाँ डिज़ाइन में आ गए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ये रेडीमेड है, हम यहाँ से कोई भी डिज़ाइन ले सकते हैं। सेकंड थिंग, हम सेल पे क्लिक करेंगे तो हम जो एक सेल को मतलब एक बॉक्स को हम जो शेड देना चाहेंगे वी कैन गिव इट। उसके बाद हम पूरे टेबल को सिलेक्ट करके दे सकते हैं, हम एक रो को, हम एक कॉलम को सिलेक्ट करके दे सकते हैं। दिस इज़ अप टू यू। सो फर्स्ट थिंग इज़ दिस। इसके बाद वी आर हैविंग अनदर ऑप्शन इज़, अगर हमें अपने टेबल को बॉर्डर देना है तो बॉर्डर हम कैसे देंगे। अगेन हमने अपने टेबल को सिलेक्ट किया और यहाँ पे डिज़ाइन व्यू में जाने के बाद हमें सबसे पहले क्या करना है, शेडिंग में कलर सिलेक्ट करना है। तो टेबल का बॉर्डर देने के लिए हमें सबसे पहले टेबल को पूरे को सिलेक्ट करना है। आफ्टर दैट हमें यहाँ से बॉर्डर स्टाइल सिलेक्ट करना है। जो भी हम बॉर्डर स्टाइल सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे बॉर्डर स्टाइल्स आर गिवन देयर एज यू कैन सी देयर। यहाँ से हम बॉर्डर स्टाइल सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से वी कैन सिलेक्ट द पेन कलर। हेयर यू कैन सी द ऑप्शन बॉर्डर स्टाइल इज़ देयर, पेन कलर इज़ देयर। पेन कलर की ऑप्शन हम सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से हम कोई भी कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आई हैव चूजन ग्रीन ओवर देयर। एंड उसके बाद यहाँ से हम सिलेक्ट कर सकते हैं कि हमारे बॉर्डर की थिकनेस कैसी हो। हम जितनी थिकनेस यहाँ से लेंगे उतनी थिकनेस हमारे बॉर्डर की होगी। एंड आफ्टर दैट वी आर हैविंग बॉर्डर देयर। जो भी बॉर्डर हम सिलेक्ट करेंगे, अगर हम बॉटम पे करेंगे तो एज यू कैन सी, अगर हम बॉटम कर रहे हैं तो बॉटम पे बॉर्डर आ रहा है, टॉप पे कर रहे हैं तो इट इज़ कमिंग एट टॉप, लेफ़्ट पे कर रहे हैं तो लेफ़्ट, एंड राइट पे करेंगे राइट। नो बॉर्डर तो टेबल विल गॉन, एंड ऑल बॉर्डर तो इट विल कम लाइक दिस। आउटसाइड बॉर्डर तो वो सिर्फ बाहर की तरफ होगा, इनसाइड बॉर्डर तो वो सिर्फ इनसाइड होगा। एंड इनसाइड हॉरिजॉन्टल, इनसाइड वर्टिकल, काइंड ऑफ दिस थिंग। हॉरिजेंटल मतलब दिस वे एंड वर्टिकल मीन्स दिस वे एंड डायगनल मीन्स दिस वे। सो दीज आर द ऑप्शंस यू कैन यूज। सो आई हैव चूजन ऑल बॉर्डर। तो मैंने अगर ऑल बॉर्डर पे क्लिक करके मैंने ऐसे किया तो ये सारा बॉर्डर मेरे फिल हो गया। लेकिन स्टूडेंट्स, अगेन आई एम गोइंग बैक। बॉर्डर अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको उसके फॉर्मेटिंग फीचर्स को अप्लाई करना होगा। फॉर्मेटिंग फीचर्स मतलब सबसे पहले आपको बॉर्डर का स्टाइल सिलेक्ट करना होगा। यहाँ से एज यू कैन सी, सबसे पहले आप यहाँ से स्टाइल को सिलेक्ट करोगे, फिर यहाँ से आप उसका कलर सिलेक्ट करोगे, एंड देन उसके बाद आप यहाँ से उसकी थिकनेस को सिलेक्ट करोगे, एंड देन यू विल गो टू बॉर्डर, एंड देन बॉर्डर विल कम। अदरवाइज बॉर्डर विल not come and it will not be selected properly. सबसे पहले उसके features and then border. So as you can see, जैसे जैसे हमने border select किया था, it is there. So this is how we can apply border to our text. So how we can give formatting to our table. हम table की formatting कैसे कर सकते हैं, यहाँ से जाके हम ऑटोमेटिक फॉर्मेटिंग भी चूज़ कर सकते हैं,
और हम अपने हिसाब से कलर भी दे सकते हैं और बॉर्डर भी दे सकते हैं. मीन्स जैसे यहाँ पे एज यू कैन सी की शेडिंग है, तो हम उस हिसाब से शेडिंग भी कर सकते हैं अपने टेबल की जैसे हम चाहते हैं, और हम उसको बॉर्डर और अपने हिसाब से उसको डिज़ाइन करके हम उसको अपने हिसाब से उसको अट्रैक्टिव भी बना सकते हैं. सो दिस इज़ हाउ वी कैन गिव फॉर्मेटिंग टू आवर टेबल. सो ट्राई द फॉर्मेटिंग ऑफ द टेबल. आप टेबल की फॉर्मेटिंग को घर पे ट्राई करेंगे एंड देन यू विल लेट मी नो, यू विल मैसेज मी कि यू हैव ट्राइड दिस एंड इट इज़ वर्किंग एज पर योर what you are doing. So I'll be waiting. If you will do it at home, as I previously told you, if you are having computers or laptops at home, please do it and show it to me कि this work you have done. And इसके अंदर आप टेक्स्ट भी एंटर कर सकते हैं. जैसे नॉर्मल टेक्स्ट आप एंटर करते हैं तो इसमें यू कैन एंटर द टेक्स्ट. इट विल वर्क एज लाइक योर टेबल. सो again I am saying I will be waiting for your work if you will be doing at home, if you are having computer or laptop. And we'll do today सिर्फ इतना ही. we will do formatting of the table and practice it at home and learn the work which is already done. Thank you. Bye students.